वर्ष 9 से लेकर 13 کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، آئیے ذرا مائک ادھر چلا، نہیں بس آئیے ذرا پلیز غور سے سنیے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہ سب کا خدا ہے، خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ جب کوئی ایسے پڑھے یا خادم یا خادمہ کہے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، جو جماعت جو تھی بلند آواز سے کہے کہ یسوع مسیح کا شکر ہو۔ اس کا مطلب جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، اپنے دل دماغ سے اس کو قبول کیا ہے۔ ابھی رومیوں کے خط میں 10ویں باب کی 9ویں آیت میں پولس رسول اس کلام کی منادی کچھ یوں کر رہے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اگر نہیں کہ اس میں آپ سب ہم ہو سکتے ہیں، کہ اگر ہم اپنی زبان سے اقرار ہی کر لینا کہ خداوند جو ہے، کہ یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو کیا پائیں گے؟ نجات۔ اور نجات یوں ہی نہیں ملتی ہمیں جب تک ہم اپنے نجات دہندہ کو مانتے نہیں۔ کوئی پلیز چپ کر جائے۔ جب تک ہم اپنے نجات دہندہ کے زندہ ہونے کا، خداوند ہونے کا اپنی زبان سے، اپنے دل سے اقرار نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، ہم نجات نہیں پا سکتے۔ ہمارا نجات کا وسیلہ جو ہے یسوع ہے، کیونکہ جب خدا نے اس دنیا میں آیا اور اپنا بیش قیمت خون بہا کر اس سے ہمیں کیا دلائی؟ نجات۔ جو ہم نے، ہمارے بڑے بزرگوں نے گناہ کیے تھے، وہ کیونکہ بے عیب بھرا تھا، وہ گناہ سے پاک تھا، پر اس نے ہمیں نجات دینے کے لیے کیا کیا؟ مار گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہمیں کیا ملی؟ نجات۔ ہم سب کیا ہیں؟ نجات یافتہ ہیں۔ جب ہم یسوع کو اگنور کرتے ہیں، اس کو خداوند ہونے کا اقرار نہیں کرتے، تو پھر ہمیں نجات نہیں ملتی۔ اور ابلیس ازل سے یہ چاہتا ہے ہم اس نجات سے، اس خوشخبری سے محروم رہیں، خدا کو ایکسپٹ نہ کریں، اس کو یسوع نہ کہیں، اس کو خداوند نہ کہیں، خدا کا بیٹا نہ کہیں، تاکہ ہماری نجات کا کام رک جائے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو ہم نجات کے حقدار ہو جاتے، نجات کے وارث ہو جاتے۔ اسی طرح جب ہمارے گھر کے سربراہ، ہماری ماں یا باپ، امی ابو، ماما پاپا جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں، پورے گھر کو پریزنٹ کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹی یا میرے بیٹے یسوع ہی خدا، وہی نجات دہندہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہم مائیں ہیں، جو یہاں پہ جتنے پریزنٹ بھی فادرز بیٹھے ہوئے، وہ خدا کے کلام کی اس خوشخبری کو پورا کرتے ہیں، اس ایمان کو اپنے بچوں میں ڈیلیور کرتے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے جو مردوں میں سے جلایا گیا۔ تو آپ اپنے خاندان کے پاس، ان کے قریب، ان کے اوپر نجات لینے کا باعث بنتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ذمہ داری کو بڑے اچھے سے نبھائیں، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم راست باز ہوتے ہیں تو ہم پھر اقرار بھی کریں گے، اگر ہم اقرار کریں گے تو ہم دل سے پھر خدا کو مانیں گے۔ اگر ہم یہ سارا کچھ دل سے کریں گے تو خدا کیوں نہیں ہمیں نجات دے گا؟ ہمیں بھی نجات ملے گی، ہمارے بچوں کو بھی نجات ملے گی، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ سم ٹائم لوگ، ہمارے بہت سارے خاندانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بہن یا بیٹا یا کوئی خاندان بلیس ہوتا ہے، تو جہاں کہیں وہ کلام سنتا ہے، خدا نے ہمیں اس کے لیے دنیا میں بھیجا کہ ہم جا کر ادھر جو آپ کلام سن رہے ہیں، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو جا کے بتانا ہے کہ آج سنڈے سروس میں نے یہ سنا۔ تو جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے، آپ راست بازی کا کام نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ اپنے منہ سے اقرار کریں گے کہ خداوند یسوع جو ہے وہ خداوند ہے، یسوع ناصری ہے، وہ مردوں میں سے جلایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نجات کا کام پورا کریں، راست بازی کا کام پورا کریں، اور اس نجات کے اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا وہ خداوند ہے
तब बस वो क्या चाहता है कि हम अपने मुंह से इकरार करें, क्योंकि आप दुनियावी तौर पे भी देखें, जब आप किसी के साथ कोई बात करते हैं, कोई आपके कितना भी क्लोज हो, डॉक्टर से ले लें जिन्होंने पढ़ के डिग्रीज की होती है, आप जब उनके पास जाते हैं अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए, जब तक आप कुछ उसको बताएंगे नहीं, अपनी सूरत हाल नहीं बताएंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो दुनियावी डॉक्टर है। जब आप उसको बताएंगे ना कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, इसका मतलब आप इकरार कर रहे हैं कि मुझे ये मुस्लिम सही है, फिर वो आपके लिए क्या करेगा, आपके लिए दवाई तजवीज़ करेगा कि ये खाओ तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो आप दुनियावी तौर पर शिफा पाएंगे। और जब आपका रूहानी बाप जिसने आपको तख्लीक किया है, आपको बनाया है, सेम इसी तरह वो भी चाहता है कि आप उसके सुंदर कदमों में आए, उसकी बारगाहों में आए, उसके आगे झुक जाएं, उसके खुदावंद होने का इकरार करें, अपने मुंह से इकरार करें, तो आपके लिए निजात आपके दरवाजे पर खड़े हैं। खुदावंद जब जिस दुनिया में, जिस घर में, जिस फैमिली में आ जाता है, तो समझे निजात आ जाती है। ठीक है, हमारा खुदावंद जो है वो निजात का चश्मा है, और निजात उसके अंदर से निकलती। चनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। आप कभी भी ना ये सोचें कि हम मसीही हैं। अभी तक तो जब जैसे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ये क्रिश्चियन चैनल्स जो खुले में, बड़ी अवेयरनेस है, बड़ी रोशनी है खुदावंद के कलाम की, घर घर में, फोन्स पे, LCD पे, हर जगह पे, गली कूचे बाजारों में हम जाएं तो खुदा का कलाम लगा होता है, गीतों की आवाज़ आती है। हम अगर समझे कि हम इतने खुशकिस्मत हो गए, ये जो हमारा फ़ोन है, अगर हम इसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल करें तो ये उसके लिए भी रेडी है। इसके अंदर एक ऐप है यूट्यूब, गूगल, जो भी आप समझते हो, उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कुकिंग का प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं ना, ऐसे इसको क्लिक किया है कि हम खाना देख रहे हैं, तो इसमें जो स्पिरिट है वो इतनी चालाक और शातिर है, साइंस ने इतनी तरक्की कि आप कुकिंग का देखना चाहेंगे ना, तो कुकिंग की डिशेज आना शुरू हो जाएंगी, कभी आजमा के देख। अगर आप इसमें कुछ और देखना शुरू हो जाएंगे तो वो आना शुरू होएगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, इसमें कुछ खुदा का कलाम देखेंगे, तो खुदा का कलाम आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए काइंडली इस फोन को उस तरह ना इस्तेमाल करें कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई सुन नहीं रहा, मैं जो मर्जी इसके ऊपर देखूं। खुदा की आंख हर फर्द बशर को देखती है। जहां कहीं भी मौका आपको मिले, आप कभी भी ये ना समझे कि मेरी बहुत जिंदगी पड़ी, मैं अभी फिर ये पहले ये कर लूँ फिर वो कर लूँगा, बल्कि आप कोशिश करें कि अपना नाम किताबें याद में लिखवाएं। और तभी होगा जब आप अपनी जुबान से इकरार करेंगे, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसीलिए कि वही सबका खुदावंद है। समटाइम हम पता क्या कहते हैं, ये कैथोलिक मिशन है, ये पाई मिशन है, ये राइवेंड डायसिस है, ये मेथोडिस्ट है, ये सेवन डे वाले हैं, ये दुनिया में हम सब ने बनाई। इसी तरह खुदा के बंदा पलूस रसूल का यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, क्योंकि वही सब कुछ खुदावन का है, और अपने सब दुआ करने वालों के लिए प्यास है। कि खुदा जो है, जो ये लफ्ज़ प्यास है, दुनियावी तौर पे अगर हम देखें ना, तो ये एक नाम है। ठीक है, मैं आपको अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप जनरल नॉलेज पे लिख सकते हो। प्यास का मतलब है खुला खर्च करने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही खुदा है। दरिया दिल, बहुत प्यारे दिल वाला। दरिया का आप अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। दरिया का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना गहरा है। फ्याज का मतलब है हमारे खुदा की सिफतें हैं, उसके मुख्तलिफ नाम है। दरिया दिल, खुले दिल वाला। सखी, सखी जैसे कह रहे बंदा बड़ा सखी है। सखी मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं, उसकी अगर आप निजात पाना चाहते हैं, अपनी जुबान से उसके यीशु खुदावंद होने का इकरार करें, और ये इकरार करें कि वो मुर्दों से जलाया गया, तो ये सारी जो उसकी सिफतें हैं, जो उसके नाम है, ये सब कुछ आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां बन रहे हैं, उसकी शकीर्दियत में आ रहे हैं। तो फिर क्या फ्याज का क्या मतलब है? खुला खर्च करने वाला। वो आपको बेइंतहा दौलत से मालोमाल कर देगा, क्योंकि उसके पास खजाने छुपे हुए हैं, उसने हम सब के लिए रखे हैं। और आज भी हम खुशकिस्मत हैं कि इस दुनिया में हम जीती जान है। दरिया दिल, उसकी कोई लिमिट नहीं, वो इतना आपको प्यार करेगा, इतना देगा कि आप दरिया से भी उसका अंदाजा करेंगे तो वो भी कम पड़ जाएगा। सखी मतलब कि बहुत कुछ देने वाला, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। फैज पहुंचाने वाला, फायदा पहुंचाने वाला, नफा पहुंचाने वाला। आप किसी और की पैरोगरी करके देखें, आज के लोगों ने ऊपर से यीशु मसीह कहते दिल में पता नहीं कितने खुदा क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ है, पर उधर जो खुशियां मिलती हैं, जो धन दौलत मिलता है, जो ऐशो इशरत मिलती है, सब कुछ वो सिर्फ आर्जी, टेम्परेरी, चंद दिनों का।
चंद महीनों का, चंद सालों का होता है, पर जब आप मेरे और अपने यीशु के पास आते हैं, उसके खुदावंद होने का आपकी जुबान इकरार करती है कि यीशु ही खुदावंद है जो मुर्दों में से जलाया गया, तो आपको ये टेम्पररी चीजें नहीं मिलेंगी, आपको हमेशा के लिए मिलेंगी। जिंदगी भी आपका हर चीज खुदा दरिया के मुताबिक आपको देगा। फैज आपको फैज पहुंचाएगा, आपकी जिंदगी में फायदे, खुशियां, और आपकी औलाद आपके ताबे हो जाएगी जब आपके यीशु के खुदावंद होने का आप इकरार करेंगे। तो क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। जब आप खुदावंद का नाम ले ही लेंगे तो समझे आपको निजात मिल गई। तो ये कोई इतना मुश्किल तो नहीं कि आप अपने खुदा का नाम ले और इंतजार करते रहे कि निजात कब आएगी। उससे उसी आयत ने कहा है कि जब उसका नाम ले ही लेंगे तो आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जो खुदावंद है वो निजात का मंबा है। निजात उसके अंदर से निकलती है, वो है ही निजात, क्योंकि वो बेअहद बना था। जब इस दुनिया में आया तो उसे हमें निजात देने के लिए क्या प्रूफ दिया कि उसने अपनी जान दी। अब मैं या आप कोई और किसी के लिए जान दे सकता है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। हम किसी के लिए जान के अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। दुनियावी तौर पे हमें कोई बेइज्जत करे, हम 100 दफा प्लानिंग बनाते हैं, फिर दूसरों को बताते, ग्रुप बनाते, एक पार्टी बनाते हैं, कैसे मुझे ऐसे कहा, ये होता कौन है, होती कौन है, मुझे ऐसे कहने वाली। तो अब कतन ये ना करें। अगर आप यीशु के बेटे और बेटियां हैं और उसको यीशु कहते हैं और खुदावंद का इकरार करते हैं कि वही खुदावंद है जो मुर्दों में से जलाया गया, तो फिर निजात आपके घर, आपके दरवाजे, आपके अंदर है। आप जब इस चर्च में आए हैं तो आज खाली हाथ आए थे, प्रस्तुति सुनी आपने, म्यूजिक सुना, खुदा का तख्त लग गया। आप जब भी किसी मीटिंग में आते हो, आप अपने घर से इकरार करके आया करो कि खुदा मैं खाली आज जा रही हूँ, जा रहा हूँ उस चर्च में, उस सेमिनार में, उस मीटिंग, उस पंडाल में, उस खेमा में, मैंने तुझे बाजू से पकड़ के अपने घर में लेके जाना। ये तब हो सकता है जब उसके यीशु होने का आप इकरार करते हैं, आपकी जुबान इकरार करती है, आपके होंठ इकरार करते हैं, आपका दिल इकरार करता है, आपका दिमाग इकरार करता है, आपकी पूरी बॉडी इकरार करती है कि यीशु ही खुदावन है जो मुर्दों में से जलाया गया। तो निजात क्यों नहीं आपके साथ जाएगी? निजात आपके साथ जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। इसी तरह आज संडे सर्विस में जो सब्बत का दिन है, आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आप इस कलाम को सुन रहे हैं, इससे शेर और सुदा मुनव्वर हो रहे हैं, क्योंकि आज के दिन खुदा ने हमारी कलीसिया के लिए ये मैसेज रखा निजात का। आप सब जानते हैं इस महीने में, गुजरे दिनों में काफी फौतगियां हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं। तो खुदा का कोई प्लान है। रात को भी हम एक फौतगी पे गए, हम 3 बजे हम आए और मैंने अपने खुदा से आंसू के बाद खुदा उनसे कलाम मांगा कि खुदा सुबह मेरी कलीसिया के लिए, हमारे चर्च के लिए रूह की ग़िज़ा क्या है? तो खुदा ने मुझे कहा निजात पे दे, क्योंकि खुदा को अभी भी इस चीज का इंतजार है कि जो मेरे यीशु खुदावंद होने का इकरार करे, निजात उसी की है। आपको पता है कहीं का किस किस को पता है? वो छोटे कद का था, पता है ना सबको। बचपन से हम संडे स्कूल में भी सुनते हैं, बहुत सारे गीतों में भी सुना, आईसीक टीवी पे भी, बुक्स में भी, कलाम में भी पढ़ते हैं। वो छोटे कद का था, तो उसको ये था कि मैं यीशु को अपने घर लेकर जाऊं। तो बहुत भीड़ थी, तो उसने क्या किया, गुलर के पेड़ पे चढ़ कर यीशु ने उसको देख लिया। यीशु ने कहा आज मैं तेरे साथ जाऊंगा तेरे घर और खाना खाऊंगा, और उसके घर में निजात चली। उसने इतना स्ट्रगल किया कि यीशु ने इतने लोगों में, इतने बड़े मजमा में उसको पहचान लिया। आप भी ऐसा ही करें, यीशु के साथ प्यार करें, जगह बजगह, खानदानों में, घरानों में, अपनी फैमिलीज, अपने बच्चों में, बीवी शोहर, शोहर बीवी को ये बताए कि यीशु नासरी है जो वही खुदावंद है, वही मर के जिंदा हुआ, वही मुर्दों में से चलाया गया, तो अपने जात को रिसीव कर सकते हैं। तो ये ऐसा ना हो कि जब क़यामत का रोज आए आप ये देखें कि मैं क्या करूं खुदा को, कि मैं दुनिया में क्या करता रहा। आप ये कभी ना सोचें कि मेरी माँ के 6 बेटे और हम 2 बहनें, मेरे 5 भाई, हम 3 बहनें। खुदा ने आपके माँ बाप को औलाद जरूर दी है, बेटियां बेटी, और उसने जो दुनिया में उनके बातन से बच्चे दिए हैं, उसका कोई मकसद है इस दुनिया में यूं ही उसने दे दी। इसमें आपकी मामा पापा की कोई करामात है, उसने इसीलिए वो औलाद उनको दी है कि जाके निजात का काम करे। आप ये खुद से ना कहा करें कि मैंने उसको ये करना है, उसको वो करना है। मेरे सामने एग्जाम्पल है, मेरे दोनों बच्चे। हर माँ बाप के दिल में ख्वाहिश होता है मैं इसको ये बनाऊं, वो बनाऊं, वो दुनियावी तौर पे हम सोचते हैं। पर इस 17 साल शादीशुदा लाइफ में मैं जब भी अपने यीशु के पास गई हूँ, मैं कहती हूँ खुदा मैं इस काबिल नहीं थी जो तूने मुझे दोनों बच्चे दी और खूबसूरत मेरी मांगने से पहले। पर मैं तो इनकी माँ हूँ, हर माँ चाहती मेरा बेटा अच्छा बने, अच्छा पढ़े, मेरी बेटी ये कर जे, वो कर जे, पर तू मुझे छोड़। तो ये बता तूने इनको किस मकसद के लिए भेजा, उससे इनको तैयार कर, उसी तरह इनका दिल, सोच, दिल दिमाग कर दे
تاکہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جب آپ خدا کے آگے اپنی اولاد اپنے سارے گھر کو رکھ لیتے ہیں تو آپ نجات کا وسیلہ بن جاتے ہیں. اس کا مطلب خدا کو آپ نے اپنے گھر کے اوپر ذمہ دار ٹھہرا دیا. یوں تو خدا دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہے, ہمارا ایک مالک ہے, خالق ہے, ہمارا آقا ہے, ہمارا خداوند ہے. اور جب آپ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ خدا میں اس گھر کی ماں تیرے بیٹی ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو تیرے سپورٹ کرتے ہیں, تجھے ذمہ داری دیتی ہوں کہ تو نے کیوں مجھے یہ دی ہے, میری کیا ذمہ داری کہ میں ان کو کس طرح گائیڈ کروں, تو پھر آپ کو یہ آواز آئے گی کہ تو میری بیٹی ہے, میں تیرا خداوند ہوں. میں یسوع ناصری کو اپنی زبان سے اقرار کر اور میرے خداوند ہونے کا اقرار کر, اور یہ بھی اقرار کر کہ میں مردوں میں سے چلایا گیا. تو آپ کو, آپ کے شوہر کو, آپ کی بیوی کو, آپ کے گھر کو نجات ملے گی یسوع کے نام سے. آمین. مجھے کیونکہ کہا گیا تھا کہ ٹائم شارٹ کر